So a very important part, which items are included in national income and which items are not included. ये बोर्ड में हो सकता है आपको 6 मार्कर आ जाए, या तो एज एन ऑप्शन आ जाता है, या फिर अलग से क्वेश्चन आ जाता है, या तो न्यूमेरिकल के साथ ऑप्शन आ जाता है. ध्यान से समझना. Okay, So sir. first we'll try and understand which items are not included in national income. अब एक चीज याद रखना, there are two kinds of questions which are asked here. Which item, whether following items are included in national income or not, या domestic income or not. तो जब हम domestic income की बात करते हैं, so while estimating whether a particular item is included in domestic income or not, we look at the location. We see where that particular activity was in, whether it was in India or it was outside India. And I hope you remember we did the definition of domestic territory. The domestic territory में these things come, and 3 things which are outside India are still part of India, and 2 things which are inside India are not included in domestic income. अगर याद नहीं है तो मैं रिवाइज करा दूंगा. बस ये याद रखना कि domestic income के time we see where a particular activity has taken place, but while calculating national income we see nationality. We see nationality की किसने वो activity की है, that particular activity, who has done that activity, Indian था या non-Indian था. Now, items not included. Remember, किसी भी type की transfer income या transfer payment are not included in national income. What is transfer income, transfer payment? Transfer incomes are those income. These are one-sided transaction in return for which no goods or services are rendered. It does not lead to the production of goods and services. For example, as I told you, scholarship. जब government आपको scholarship दे रही है तो वो क्या है, ट्रांसफर इनकम है. क्या हुआ है, सिर्फ गवर्नमेंट के बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आ गए. वो सपोज 5 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप मिली है, तो earlier government was the owner of those 5 lakh rupees. Now you are the owner. There is mere transfer of money from one account to another, from one person to another. In return for this transfer, no good or service was rendered. That is why it will not be included. For example, आपका कोई रिलेटिव है, यूएस में रहता है, उसने यूएस से आपको पैसे भेजे. अब उसने जो पैसे भेजे उसके रिटर्न में आपने कोई गुड या कोई सर्विस रेंडर नहीं करी. ऑब्वियसली this was done out of love, care, affection, help, whatever the case was. Again, this will not be included in national income. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में फ्लड्स आए, यूएस ने इंडिया को पैसे डोनेट करे 500 करोड़ रुपीज. नाउ दिस 500 करोड़ रुपीज डोनेशन विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बिकॉज इस डोनेशन के रिटर्न में ऑब्वियसली इंडिया यूएस को कुछ गुड या कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे. दीज आर ऑल ट्रांसफर इनकम. और मोर एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल आपके फादर ने, आपकी मदर ने आपको पॉकेट मनी दी. अब पॉकेट मनी के रिटर्न में आप कोई गुड या सर्विस तो रेंडर करते नहीं हो. अगेन इट डज नॉट लीड टू प्रोडक्शन. अगेन it will not be included in national income. Yes or no? सारे एग्जांपल समझ आ गए? Yes, sir. एंड रिमेंबर, इनके रीजंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रीजन हमेशा लिखना है. व्हाई? इट डज नॉट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड services. That is why they are not included in national income. Now, अब एक चीज ध्यान से समझना, एक जो एंट्री आती है इसको वो एक्सपेंडिचर वाले तरीके से मैं आपको समझाऊंगा which items are included, बट यहीं पर बता देता हूँ. सी, अगर गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रही है, it is not included in national income. But if government is spending money to give you free education, then it is included in national income. What is the difference? Can you explain? स्कॉलरशिप था, क्या लिख दिया मैंने, स्कॉलरशिप. एनी आइडिया? I'm trying to think.
ट्रांसफर इनकम, ट्रांसफर पेमेंट, वेदर इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। सी, जब गवर्नमेंट, लेट्स से गवर्नमेंट ने आपको बोला कि अगर आप अपने स्कूल में क्लास 11 में या दिल्ली में अपने स्कूल में दिल्ली में सॉरी अगर फर्स्ट आओगे क्या, तो आपकी 12th की एजुकेशन फ्री है। अब ये फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट दो तरीके से कर सकती है। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसी एग्जिस्टिंग स्कूल में ऑब्वियसली आप कंटिन्यू करोगे, और गवर्नमेंट ने बोला आपके पूरे साल की फी क्या, आपने बोला 2 लाख रुपीज। देयर आर टू वेज। गवर्नमेंट आपको 2 लाख रुपए दे देगी और बोल देगी कि अपने स्कूल की फी भर दो, इसको बोलते हैं स्कॉलरशिप। गवर्नमेंट ने आपको 2 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे दी। जब गवर्नमेंट ने आपको स्कॉलरशिप दी, बस देयर इज मेयर ट्रांसफर ऑफ मनी, जैसे मैंने आपको पहले वाले केस में बताया, सिर्फ ट्रांसफर ऑफ मनी हुआ है, Yes, इट sir. इज नॉट लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बट दूसरा केस है, व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, गवर्नमेंट कैन पे डायरेक्टली टू योर स्कूल एंड देन यू कैन गो एंड गेट योर फ्री एजुकेशन। सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सी अल्टीमेटली वही होगा। स्कॉलरशिप का मतलब होता है गवर्नमेंट पहले आपको पैसे देगी, ये स्कॉलरशिप है, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। बट जब आप अपनी फीस पे करोगे तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ये एंट्री आ जाएगी। बट कब आएगी, जब वो फी स्कूल में पे होगी। सो दूसरे ऑप्शन में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट डायरेक्टली अपनी आपके स्कूल की फी पे कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट और अ ट्रांसफर इनकम। In return for this payment, goods services are being rendered to you. The only difference is services आपको मिल रही है बट उसकी पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट आपके बिहाफ पे कर रही है। So this payment of 2 lakh rupees to your school by the government is leading to the production of services, क्योंकि आप वो आपके स्कूल की फी पे कर रहे हैं तभी वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो फी पे नहीं करेंगे तो वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो एक्सपेंडिचर ऑन फ्री एजुकेशन। सो अगेन गवर्नमेंट या तो आपको स्कॉलरशिप दे दे या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल खोले जहाँ पे बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है। यू डोंट हैव टू गो एंड पे बिकॉज फ्री एजुकेशन है, बट वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वहाँ के जो टीचर्स है उनको गवर्नमेंट को सैलरी तो पे करनी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट का तो खर्चा हो रहा है। तो गवर्नमेंट विल बी स्पेंडिंग मनी एंड इन रिटर्न द ओनली डिफरेंस इज मनी खर्च कोई और रहा है लेकिन उसका सर्विसेज किसी और को मिल रहे हैं। इन दैट केस इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बिकॉज गवर्नमेंट का ये एक्सपेंडिचर है। Okay, sir. ठीक है। स्कॉलरशिप में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, लेकिन जब स्कॉलरशिप वाले पैसे आप स्कूल में भरने जाओगे ना तब वो आ जाएंगे। बट स्कॉलरशिप बस इतना हो रहा है कि देयर इज जस्ट ट्रांसफर, इसलिए स्कॉलरशिप विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट एक्सपेंडिचर ऑन फ्री एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन फ्री हेल्थ केयर, दिस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। Okay, sir. तो किसी भी फॉर्म का ट्रांसफर इनकम या ट्रांसफर पेमेंट इज नॉट इंक्लूडेड। सेकंड, टैक्स ऑफ एनी फॉर्म इज नॉट इंक्लूडेड। Why? Because tax is a compulsory transfer payment. It is a compulsory transfer payment that you have to pay to the government. Ab, because in return for tax, no goods or services are rendered to you. अब you can argue on the grounds कि obviously goods or services are rendered। जब हम लोग टैक्स पे करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्शन देती है, फ्लाईओवर्स बनाती है, ब्रिजेस बनाती है। बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट, वन। सेकेंड पार्ट इज ये ना स्पेसिफिक नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपने टैक्स पे करा तो गवर्नमेंट ने सिर्फ आपके घर के सामने वाली रोड बनाई, आपके घर के सामने पुलिस ऑफिसर्स रख दिए, या आपके घर के सामने जो फ्लाईओवर जाएगा वो सिर्फ वही लोग यूज कर पाएंगे उस एरिया में जिसने टैक्स भरा। सपोज मैंने टैक्स नहीं भरा तो क्या गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि मेरे आगे की रोड नहीं बनाएंगे, मेरे घर के आगे पार्क्स को मेंटेन नहीं करेंगे, या किसी फ्लाईओवर या मेट्रो को मैं यूज नहीं कर सकता बिकॉज मैंने टैक्स पे नहीं करा? नो। No, These are sir. general services. These are general services which is the responsibility duty of the government. So irrespective of who is paying tax, irrespective of how much tax you are paying, you will still get these services. तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप टैक्स पे कर रहे हो उसके रिटर्न में गवर्नमेंट स्पेसिफिकली आपके लिए कुछ कर रही है। तो दिस इज अ कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट, दीज आर नॉट इंक्लूडेड। एक ये, और दूसरा याद करो, जब हम एमपी से एफसी जाते हैं, व्हाट इज नेशनल इनकम? नेशनल इनकम होता है एनएनपी एफसी। और आपको याद है फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस नहीं होते, क्योंकि जब हम एमपी से एफसी जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, माइनस एनआईटी करते हैं, एनआईटी माइनस करते हैं जो कि होता है माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी। तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को वहां पे भी माइनस कर रहे होते हैं बिकॉज दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ठीक है। Yes, sir. ठीक है ना। किसी भी फॉर्म का कैपिटल गेन
कैपिटल लॉस में सारा कंबाइन करके बता रहा हूँ, किसी भी फॉर्म का कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, विंडफॉल गेन नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। व्हाई? सपोज आपने रिलायंस के शेयर खरीदे, मैं दूसरा आइटम भी बताता हूँ आपको, sale and purchase of financial assets, again they are not included in national income. Even these are not included in national income for the simple reason, suppose आपने आज 1 करोड़ का एक घर लिया, with time उस घर की वैल्यू 1-2 साल में 2 करोड़ हो गई जैसे। अब जो कैपिटल गेन आपको हुआ है, ऑब्वियसली आपने 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी और 2 साल बाद आपको 2 करोड़ मिलेंगे। अब ये जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा आपको मिले हैं, क्या ये आपको इसलिए मिले हैं क्योंकि यू हैव एडेड समथिंग टू योर हाउस, या आपने फ्लोर ऐड किया, या उसका इंटीरियर कराया, या उसमें से फर्नीचर डाला? नो, वो बस इसलिए मिला बिकॉज जो लैंड आपने खरीदा था या जो घर आपने खरीदा था, विथ टाइम उसकी वैल्यू बढ़ गई है। इट इज नॉट लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कोई नया घर नहीं बना है, नया कमरा, नया फ्लोर, इंटीरियर कुछ भी नहीं हुआ है। इट इज द सेम प्रोडक्ट, just that the value of that particular product has now gone up because of time. So it is not adding to the production of goods and services. और जब आपने 1 करोड़ डाले, आपको 2 करोड़ मिले, so जो 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिला उसके रिटर्न में आपने उसको क्या दिया? वही घर दिया जो 1 करोड़ था, राइट? Yes, sir. ऐसा तो नहीं आपने उसको कोई फालतू दिया तो रिटर्न में कुछ नहीं। ऐसे कैपिटल लॉस इज आल्सो नॉट इंक्लूडेड बाय, अगर लेट्स से फ्लड्स आ गए या अर्थक्वेक आ गए जिसकी वजह से कैपिटल लॉस हो गया, घर टूट गया, एक्सवाइजी कुछ भी हो गया, इट इज अगेन नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कोई लेना देना नहीं बिकॉज कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगेन विंडफॉल गेन, विंडफॉल गेन का मतलब होता है आप लॉटरी जीत गए, आपने हॉर्स रेस में पैसे जीत लिए, ऑल दीज आर नॉट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। आप ये बोल सकते हो कि मेरी इनकम बढ़ गई है, रिमेंबर दैट इज नॉट इनकम बिकॉज जब आपने लेट से हॉर्स रेस में सुबह 1 लाख रुपीज लगाए और शाम को वो 10 लाख रुपीज हो गए बिकॉज वो पर्टिकुलर हॉर्स जीत गया। अब 1 लाख के जो 10 लाख हो गए, जो एक्स्ट्रा 9 लाख आपको मिले हैं, क्या उसके रिटर्न में आपने कोई गुड या सर्विस दिया है उसको? नहीं No, दिया। sir. आपने एक बेट लगाई, इट इज अगेन इट बेसिकली पार्ट ऑफ कैपिटल गेन। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी, कहीं बेट लगाई और वो बेट आपकी क्लिक कर गई और आपके पैसे। हाँ, जब वो 10 लाख रुपए आप खर्चने जाओगे, जब लेट से आपने उस 10 लाख रुपए की कार खरीदी, तब वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। रिमेंबर दीज आर डिफरेंट। आप उस एंट्री में क्या हो रहा है वो अलग चीज है, और उस रिसीट से मतलब जो पैसे मिलेंगे उससे आप करोगे क्या, वो अलग चीज है। तो जब मुझे वो रिसीट मिली 10 लाख रुपीज की बिकॉज आई हैड पुट बेट ऑन अ हॉर्स फॉर 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख के 10 लाख जो हुए, जो पैसे मुझे मिले, वो ट्रांसफर इनकम है। उसके रिटर्न में मैंने कोई गुड कोई सर्विस रेंट नहीं करी। इट डज नॉट लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। बट हाँ, जब मैं वो पैसे खर्चने जाऊंगा और उससे गाड़ी खरीदूंगा, तब वो मेरा पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट नॉट नाउ। सिमिलरली सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब स्टॉक्स, बॉन्ड, इन सबको खरीदना और बेचना, अगेन इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ मेयर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और कुछ भी नहीं है। सपोज आपने रिलायंस के शेयर आपके पास थे 2 लाख रुपए के, आपने बेच दिए और मैंने खरीद लिए, तो आपने सेल करे, मैंने परचेज करा, बट क्या इससे कुछ प्रोडक्शन हुआ? क्या हमारी कंट्री का Yes, sir. जीडीपी बढ़ा? देयर इज नो प्रोडक्शन बिकॉज बस ओनरशिप चेंज होगी। जो लेट से रिलायंस के 10 लाख रुपए के 2 लाख रुपए के शेयर थे, 1000 शेयर थे, सॉरी 100 शेयर थे, 2000 का शेयर है, वो 100 शेयर पहले आपके नाम पे थे, अब वो मेरे नाम पे हो गए। सो देयर इज अ मेयर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर, देयर इज नो फिजिकल आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस्ड, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। उससे कुछ भी आउटपुट नहीं हुआ, ठीक है? Yes, sir. बट अच्छा, एक चीज और बताता हूँ फिर। सिमिलरली sale and purchase sale and purchase of second hand goods, even they are not included in national income. Why? Because let's say आपने 2015 में एक कार खरीदी for 10 लाख रुपीस ना, उस साल के 2015 के ईयर, उस ईयर के जीडीपी में 10 लाख रुपए ऐड हो गए बिकॉज इंडिया में एक लेट से आपने मारुति की गाड़ी खरीदी, क्योंकि आपने मारुति की 10 लाख की गाड़ी खरीदी, जीडीपी बढ़ा, उस साल की नेशनल इनकम में 10 लाख रुपए ऐड हो गए। 2020 में लेट से आपने वो कार बेच दी किसी को 4 लाख रुपीज में और आपको 4 लाख रुपए मिल गए,
Now if you add this sale and purchase of a second hand good, again it will lead to the problem of double counting. Why? Because the value of this car was already included in the year when it was produced. तो इसके हिसाब से तो जो 10 लाख रुपए की गाड़ी है उसकी वैल्यू आपने 14 लाख कर दी। 10 लाख रुपए आपने पहले 2015 में डाल दिए, 4 लाख आपने 2020 में डाल दिए। लेट्स से जिसने खरीदी 2022 में उसने 2.5 लाख रुपए की बेच दी, फिर वो भी 2.5 लाख डाल देगा। तो एक 10 लाख रुपए की चीज इंडिया की नेशनल इनकम में 3 बार आ गई और 17.5 लाख रुपए का अमाउंट बना दिया उसने, 16 लाख रुपए का अमाउंट बना दिया। सो कोई भी सेकेंड हैंड गुड को खरीदना या बेचना, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जैसे मैंने Okay, आपको sir. घर वाला बताया कि आपने लेट्स से 2020 में आपने एक घर बनाया, खरीदा नहीं बोला, बनाया, मतलब न्यूली कंस्ट्रक्ट करा एक घर और उसको 2 करोड़ में खरीदा। अब 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा, आपने लैंड खरीदा और वो बनाया ना, 2 करोड़ रुपए का खर्चा लगा। द वैल्यू ऑफ दिस हाउस विल बी इंक्लूडेड इन 2020 नेशनल इनकम बिकॉज दिस हाउस वाज प्रोड्यूस्ड इन 2020। 2022 में आपने उस घर को बेच दिया। Now this is now an old house. The value of this house, which is 2 crore rupees, original value of this house 2 crore rupees, was already included in 2020. If in 2022 this house is sold for 3 crore rupees, this value will not be included because अगर आप 3 करोड़ फिर से ऐड कर दोगे तो वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक 2 करोड़ का घर था जो नेशनल इनकम में 5 करोड़ का वैल्यू डल गया है, because the value of this house was already included in the year when it was produced. ठीक है, but suppose आपने क्या किया, एक घर कंस्ट्रक्ट करा था और 2 करोड़ रुपए का खर्चा आया था, सो आपने नेशनल इनकम में 2 करोड़ डाल दिया। उसके बाद आपने एक फ्लोर ऐड कर दिया जिसकी वजह से, उस फ्लोर की वजह से उस घर की वैल्यू 1 करोड़ से बढ़ गई और अब वो 3 करोड़ का हो गया है। सो दिस 1 करोड़ रुपीज इज न्यू कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि जब 2020 में जब आपने 2 करोड़ पे डाले थे वो सिर्फ इतने घर के डाले थे, एक नया घर जो बना था। But since you have added a floor, this is like new construction, new capital formation, a new fixed asset being created. So let's say 2021 में जब आपने घर बनाया था, ये फ्लोर ऐड करा था, तब 1 करोड़ पे फिर से नेशनल इनकम में जाएंगे फॉर द सेम हाउस। वाई द लॉजिक हियर इज, घर सेम नहीं है, घर पे एक नया फ्लोर ऐड हो गया है, तो जो नया फ्लोर का नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, दिस विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज एक कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। ये 2 करोड़ ऐड नहीं होंगे बट ये 1 करोड़ अलग से ऐड होंगे बिकॉज टोटल इस बिल्डिंग की वैल्यू अब 3 करोड़ हो गई ना। 2 करोड़ 2020 में डाल दिए थे और 1 करोड़ 2021 में डालेंगे। Okay, sir. ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग यहीं पर बता रहा हूँ, ऑल्दो आगे जाके बताते हैं। सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स नॉट इंक्लूडेड, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड, बट जो ब्रोकर्स कमीशन है इन दोनों केस में, ब्रोकर्स कमीशन used, मतलब broker commission paid for sale and purchase of second hand goods, second hand house, financial asset shares, it is included. This is included in national income. Why? So because Because it's providing services. exactly, because although 2020 में जब आपने अपनी 2015 वाली कार बेची, लेट्स से 4 लाख रुपीस की जो हमने बताया, बट लेट्स से आपने ब्रोकर को कमीशन दी 20,000 की। Now this commission you have paid in 2020 for the services which are rendered in 2020. So ये 4 लाख रुपए तो ऐड नहीं होंगे, ऑब्वियसली ये 4 लाख रुपए ऐड नहीं होंगे because the value of this car is already included, but ये 20,000 rupees will be added in national income because these services were rendered in the current year and these 20,000 rupees are paid for the services which are rendered right now. सिमिलरली जब आपने रिलायंस के 2 लाख रुपए के शेयर बेचे और मैंने खरीद लिए, दोस 2 लाख रुपीज विल नॉट बी इंक्लूडेड, बट जब आपने बेचे आपने एक ब्रोकर कमीशन पे करी और जब मैंने खरीदे तो 0.5 या 0.7% मैंने, तो 2 लाख पे 7,000 लगा लो, आई थिंक नहीं सॉरी 700 रुपए, तो वो मैंने पे करी, 700 आपने पे करा, तो वो 1,400 रुपए विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर बिकॉज दैट सर्विसेज वर रेंडर्ड इन दैट पर्टिकुलर। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। देन किसी भी फॉर्म का इंटरमीडिएट गुड्स, intermediate goods, again
not included in national income because हमने बहुत बार डिस्कस करा है, because the value of intermediate goods are already included in the value of final good. For example, हम पिज्जा की वैल्यू डालते हैं, उसमें जो बेस लगा, सॉसेस लगी, वेजिटेबल्स लगा, चीज लगा, उसकी वैल्यू नहीं डालते. हम लोग फाइनल प्रोडक्ट कार की वैल्यू डालते हैं, उसमें जो स्टील लगा, ग्लास लगा, इंजन लगा, एक्सवाइजी जो भी ऑयल लगा, वो सब हम नहीं डालते हैं, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ऑल दीज गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट व्हिच इज द कार. तो किसी भी फॉर्म का इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ठीक है. Yes, sir. Now there is an entry which is national debt interest. National debt interest. Now national debt interest या फिर इसका एक और नाम है interest on public debt. This again is not included in national income because this means this is basically borrowings done by government. When government borrows for consumption needs, this is important to understand. When government borrows for consumption needs, sometimes what happens, let's say गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो नहीं करती. कैसे बोरो करती है? बॉन्ड्स वगैरह के थ्रू. तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपके पास नहीं आएगी और आपको ये नहीं बोलेगी कि उसको पैसे की रिक्वायरमेंट, आप उसको पेमेंट कर दो. गवर्नमेंट क्या करेगी? बॉन्ड्स निकालेगी. मतलब 7% बॉन्ड, 8% की अगर आप 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदते हो तो 1 साल बाद आपको 1 लाख और 7,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा, जैसे आप एफडी वगैरह कराते हो. तो आपने क्या करा? इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को लोन दे दिया. तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने आपसे लोन ले लिया थ्रू बॉन्ड्स. गवर्नमेंट पब्लिक से तब बोरो करते हैं जब उसको कंजम्पशन नीड्स पूरी करनी होती है. रिमेंबर, अभी बहुत सारे एग्जांपल बता रहा हूँ. व्हेनेवर अ लोन इज टेकन, उस सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी if that loan is taken for production purpose. If the loan is taken for consumption purpose, the interest will not be included in national income. अब इसके मैं 3-4 एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ. Interest on public debt या national debt interest, as I told you, will not be included in national income for the simple reason consumption needs पूरी करने के लिए लिया. Now suppose आपने बैंक से एक लोन लिया. तो किसी इंडिविजुअल ने लोन लिया बैंक से और वो लोन आपने अपनी कार खरीदने के लिए लिया और वो गाड़ी अब अपनी कंजम्पशन के लिए यूज करोगे, मतलब हाउस होल्ड एक्टिविटीज अपने लिए गाड़ी ले रहे हो. Now the interest that you pay on the loan taken on car will not be included in national income because the individual has bought or this car or taken this loan to fulfill a consumption need. ऐसा नहीं है कि उस लोन को यूज करके आप और पैसा कमाओगे. It will not be included. But आपने लोन लिया, गाड़ी खरीदी और गाड़ी आपने खुद यूज नहीं करी, आपने ओला में डाल दी. नाउ इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज अब ये कंजम्पशन पर्पस नहीं है, अब ये क्या हो गया है? ये प्रोडक्शन पर्पस हो गया है. नाउ इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज आपने जो 10 लाख रुपए का लोन लिया, आपने 10 लाख की फिर गाड़ी ली और उस गाड़ी को आपने ओला में डाला. तो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, यू आर ट्राइंग टू मेक एन इन्वेस्टमेंट. आप उस 10 लाख से और पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हो कोई ना कोई, राइट? उससे सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस. जब आप ओला सर्विसेज दोगे, आप लोगों को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दोगे, उसके रिटर्न में वो आपको पेमेंट देंगे. Yes, sir. राइट? सो देन इट विल बी इंक्लूडेड. सो अगर कोई फर्म लोन ले रहा है बैंक से, फर्म ऑब्वियसली प्रोडक्शन प्रोड्यूसर है, कोई प्रोडक्शन यूनिट है, देन इट विल बी इंक्लूडेड द इंटरेस्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरेस्ट, दैट देन इंटरेस्ट विल बी इंक्लूडेड. बट कोई इंडिविजुअल ले रहा है अपनी कंजम्पशन नीड पूरी करने के लिए, दैट इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. फॉर एग्जांपल, आपने अपने फ्रेंड से लोन लिया बाइक खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, टीवी खरीदने के लिए, और आपने उसको इंटरेस्ट पे करा 1-2 साल ईएमआई में, आपने उससे पैसे ले लिए क्योंकि वो आपको बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था देन फ्रॉम द बैंक, प्लस आपका दोस्त भी था. देन इट विल नॉट बी इंक्लूडेड. द इंटरेस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अगेन फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज यू हैव टेकन लोन फॉर कंजम्पशन पर्पस. बट इफ यू टेक दैट लोन एंड इन्वेस्ट इन योर बिजनेस एंड यू ट्राई टू अर्न मनी फ्रॉम दैट मनी, मतलब प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रही है, देन इट विल बी. सो जब भी ये आएगा इंटरेस्ट इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो लोन है उसका क्या यूज हुआ है, whether it is used for consumption purpose or for investment या production purpose, आपको वो चेक करना है. ठीक है? Okay, sir.
So these are certain items which are not included in national income. फिर से एक बार, national debt interest, अभी ना बहुत सारी एंट्रीज आती रहेगी, ये बेसिक चीज है जो नहीं आएंगी. इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, ब्रोकर्स कमीशन इज इंक्लूडेड, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड, सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, किसी भी फॉर्म का कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, विंडफॉल गेन, ट्रांसफर इनकम, टैक्स, ये सब these all these are not included in national income. Then इंक्लूड क्या होता है? फिर सब कुछ तो मैंने हटा दिया. जब भी इंक्लूशन वाला पार्ट आएगा ना, आपको एक्सपेंडिचर मेथड आता है ना? Yes, sir. सो याद रखना, ये कोइंसिडेंस है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द चीजें जो इंक्लूड होती है ना, वो आपको एक्सपेंडिचर मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी पड़ती है. सो आइटम्स इंक्लूडेड, सपोज आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल जब आप अपनी ट्यूशन फी, स्कूल फी भरते हो, इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज उसके रिटर्न में मैं या स्कूल आपको कोई सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं. इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ठीक है. नाउ आप अपने लिए गाड़ी खरीद लो, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि जब आप गाड़ी लोगे, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. क्या डिफरेंस है बताओ? सर क्योंकि उसके अंदर हम लोन ले रहे हैं. नहीं, लॉजिक इज, मैंने जब लोन तो लेंगे, लोन का मैंने जब पिछली बार एंट्री बताई थी ना, नॉट इंक्लूडेड, वो ना मैं लोन की बात नहीं कर रहा था, मैंने बहुत बार बोला था, मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा था, इंटरेस्ट. सो जब मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया, उसका इंटरेस्ट जब मैं पे करूं, सो अर्लियर आई वाज टीचिंग यू कि वेदर इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, बट वो 10 लाख रुपए तो इंक्लूड होने ही है बिकॉज वो मेरे खर्चे हैं, वो मेरी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. those 10 lakh rupees will be included because 10 लाख रुपए की जो गाड़ी मैंने 2015 वाला एग्जांपल लिया था, those 10 lakh rupees will be included in national income. हाँ, उस पे जो इंटरेस्ट मैं पे कर रहा हूँ बैंक को, that will not be included क्योंकि मैंने अपनी कंजम्पशन नीड पूरी करने के लिए लिया. ठीक है. Yes, sir. तो क्योंकि ये तो मेरा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, मैं घर खरीद रहा हूँ, गाड़ी खरीद रहा हूँ, टीवी खरीद रहा हूँ, ऑल अपने स्कूल की फी पे कर रहा हूँ, अपने बच्चों की फी पे कर रहा हूँ, all these are included, अपना बस का फेयर दे रहा हूँ, कैब का फेयर दे रहा हूँ, all these are included in national income as part of private final consumption expenditure by households or by private individuals. एक याद रखना, ये बहुत कॉमन है जो आता है. दूसरा ना, कैपिटल फॉर्मेशन बहुत आता है. तो एंट्री नंबर 3 याद है जो हमने बोला था मुश्किल से, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अंडर एक्सपेंडिचर मेथड, याद है? सर हाँ जी. बोले सर एज इन याद, एज इन किस चीज में? नहीं, मतलब वो एंट्री के बारे में याद है ना, कि एंट्री की ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. यस सर, यस सर. तो बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस आएगी या आइटम्स आएंगी, वेदर दे आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट, उसको ना यहाँ से इस एंट्री से जरूर सोचना, अगर वो इस एंट्री का पार्ट है तो वो आएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक फार्मर ने ट्रैक्टर खरीदा, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है. इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ट्रैक्टर परचेज बाय अ फार्मर बिकॉज अपने उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करा. याद है उसके 3 पार्ट थे, हाउस होल्ड का था, फर्म्स का था और गवर्नमेंट का था. गवर्नमेंट ने Yes, फ्लाईओवर sir. बनाया, इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. देन एक टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी खरीदी, again it will be included in national income. Why included in national income? For the simple reason कि उसने अपने बिजनेस के लिए एक इन्वेस्टमेंट करी है. सो यहाँ से बहुत सारी चीजें आती है. तो बेसिकली ना वो चारों एंट्रीज में बताऊंगा. जब मैं आपको बता रहा हूँ ये कि which items are included, तो मैं चारों एंट्री पे जाऊंगा. अगेन एंट्री नंबर 2 भी थी, government final consumption expenditure, all these entries are included. For example, law and order मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट जो भी चीज करती है, पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी पे करती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी पे करती है, पेट्रोल पे खर्चा करती है, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. और अगर गवर्नमेंट फ्लाईओवर बना रही है, ब्रिज बना रही है, ये भी इंक्लूड होंगे, बट वो कैपिटल फॉर्मेशन में लेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंट्री नंबर 3 में चले जाएंगे. ऐसे ही चेंज इन स्टॉक या addition to stock, even this will be included in national income.
ठीक है. Yes, sir. Then change in stock, addition to stock हो गया. 1 second. Bonus paid by the employer. Even this will be included in national income. Why? Bonus आपको क्यों मिला? Because एक particular company में काम करते हो, आपने अच्छा काम करा है और उस because आपने अच्छी सर्विसेज रेंडर करी है, उसके रिटर्न में आपको बोनस मिला है या एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है या जो ओवर टाइम मनी मिला है. So again, it leads to the production of goods and services. Again, it is included in national income. ठीक है. एक एंट्री और थी, एक सेकंड. और कुछ ऐसी चीजें जैसे एक्सपेंडिचर वाला मैंने आपको बताया था कि किसी भी फॉर्म का एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, यानी कि फ्री एजुकेशन हो गया, फ्री हेल्थ केयर हो गया, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. एंड इंपॉर्टेंट, ओन प्रोडक्शन, जैसे कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो था, इवन दिस इज, याद है वैल्यू एडेड मेथड में करते थे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. सो फॉर एग्जांपल मैंने आपको एंट्री बोलता हूँ, एचपी के लैपटॉप आते हैं. HP uses its own laptop in its own office to provide certain services. Will this be included in national income or not? Can you repeat? HP uses its own laptop in its office. तो HP की जो कंपनी है, वहाँ पे जो वर्कर्स, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने HP के लैपटॉप दिए. ऑब्वियसली अब अपने आप से लैपटॉप तो उन्होंने खरीदे नहीं होंगे. Will this be included in national income or not? Yes, sir. As production for self consumption. So although वो बाहर नहीं बिके है, but उससे प्रोडक्शन तो हुई है ना. It will be Yes, added sir. to GDP because the laptops produced तो हुए, therefore it will be added to national income. ठीक है. So ये बहुत सारी एंट्रीज हैं जो हमने करी है. कुछ एंट्रीज अभी भी रह गई होंगी. So what I will do now, I will share a screen and we will discuss all the entries which are included and not included, and you will tell me the answer. ठीक है. Okay, sir. Just give me a second. मैं गूगल से स्क्रीन पे